شمالی پاکستان کا ایک ایسا علاقہ جو اپنی بے پناہ خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ جب بھی پاکستان کی قدرتی خوبصورتی کی بات کی جاتی ہے تو ہنزا کا ذکر کیے بغیر محفل کا رنگ نہیں جمتا۔ ہنزا پر قدرت اتنی مہرباں ہے کہ اس وادی کو خاص محل وقوع سے نواز کر دنیا بھر میں ممتاز کر دیا۔ یہاں کے موسم حسین اور لوگ ملنسار و مہمان نواز ہیں۔ شرح تعلیم 100% ہے۔ کریم آباد پوری وادی کا صدر مقام ہے۔ ویسے تو ہنزا کے سارے موسم اور رنگ ہی انمول ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم یہاں کا ایک خاص رنگ یعنی خزاں رنگ دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں، کیونکہ بہار تو پہلے کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ اس وادی کو پاکستان یا پھر شاید دنیا کی منفرد وادی کہنا بے جا نہ ہوگا۔ قدیم تاریخ کے آثار تو ملتے ہی ہیں، لیکن یہاں کا محل وقوع اس وادی کو دنیا بھر میں منفرد بناتا ہے۔ وادی ہنزا کے اطراف میں 6 اور 7 ہزار میٹر بلند 11 برف پوش پہاڑ ہیں۔ یہ نظارہ کسی دوسری وادی میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہاں پہ لیڈی فنگر ہے سر، لیڈی فنگر کے ساتھ جو ہے ہنزا پیک کے ساتھ جو ہے التر 1 ہے، التر 1 کے ساتھ التر 2 ہے، جو کہ دونوں پیکس 1 اور 2 ابو 7000 میٹر کا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ سامنے رکاپوشی نظر آ رہی ہے۔ رکاپوشی 7788 میٹر ہے۔ اس کے پھر لیفٹ میں ڈیران پیک ہے جو 7265 میٹر ہے۔ اس سے پھر مزید لیفٹ جائیں گے تو نگر ہوپر ویلی کی طرف، وہاں شلتر پیک ہے۔ اس کے علاوہ رش پیکس ہیں، وہاں گولڈن پیک ہے 7027 میٹر وہ ہے۔ گولڈن پیک جو ہے وہ 7027 میٹر ہے۔ اس کے علاوہ پھر رش پیک ہے، آگے برندوبر پیک۔ ماضی کی خود مختار ریاست ہنزا کا قدیم نام ہنزو تھا۔ ہنزو کا مطلب ہے ہن ڈائنیسٹی کے رہنے کی جگہ۔ 19ویں صدی کے آخری عشرے تک یہ وادی ہنزو ہی کہلاتی رہی۔ 1891 میں برطانوی راج کے دوران کیپٹن ڈیورنڈ نے ایک دستاویز میں یہ نام ہنزا لکھ دیا، جو زبان زدے عام ہو گیا۔ 1891 میں کیپٹن ڈیورنڈ نے لیگل ڈاکومنٹس جو نیگوسیشن کے سرکاری کاغذات تھے اس میں ہنزا لکھ دیا، جو اصل تلفظ ہے ہنزو ہے، HUNZOU ہنزو۔ جس طرح چائنا میں گوانزو، مانزو، ہانزو، وہاں بھی شنگھائی کے قریب ایک وادی ہے، ایک علاقہ ہے جس کا نام ہنزو ہے۔ سو ہن ڈائنیسٹی کے رہنے کی جگہ یا the district of Hun dynasty. 400 BC, some nomadic barbarians of Hun dynasty came to Hunza Valley, settled here. They named this valley Hunza. کہتے ہیں کہ وادی ہنزا قبل مسیح سے اہم تجارتی راہداری پر واقع ہے، جو سلک روٹ کہلاتا ہے۔ یہ دور قدیم کی اہم تجارتی راہداری تھی۔ چین سے کشمیر اور بر صغیر سمیت افغانستان اور روس تک تجارتی سامان یہیں سے گزر کر پہنچتا تھا۔ اسی اہمیت کی وجہ سے یہ دلنشیں وادی حملہ آوروں کے نشانے پر رہتی۔ مال و زر کی ہوس میں اکثر یہ علاقہ میدان جنگ بنا رہتا تھا۔ وادی ہنزا کی حالیہ قومیتوں میں ورشسکی بولنے والے برشو بھی ہیں، جن کے آباء و اجداد اس سے قبل کشمیر میں آباد تھے اور آرینز حملہ آوروں سے جان بچا کر گلگت، ہنزا اور غزر میں آن بسے تھے۔ ہنزا میں آباد کاری کے بعد یہ لوگ خاقان چین کو خراج یعنی ٹیکس دیتے تھے، جبکہ دریا پار نگر کی آزاد ریاست تھی جو کہ مہاراجہ کشمیر کے زیر اثر تھی۔ ہنزا اور نگر متحارب ریاستیں بھی تھیں۔ درمیان میں دریائے ہنزا بفر زون تھا۔ تجارتی قافلوں کے سری نگر پہنچنے تک راستے میں گھات لگا کر لوٹ مار کے خدشے کے پیش نظر خاقان چین نے اس اہم تجارتی راہداری کی حفاظت کے لیے ہن قبائل کے تربیت یافتہ جنگجوؤں کو یہاں بھجوا دیا، اور اس طرح
इस वादी को हुंजो का नाम मिला। वो यहाँ आए थे सिल्क रूट के कारवांस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि यहाँ इन्वेजन्स का ख़तरा था। आसपास के इलाकों से आके कारवांस पे हमला करते थे, यहाँ से श्रीनगर पहुँचने तक उन पर हमले होते थे। शायद चीन के हुन डायनेस्टी को यहाँ भेजा, वो सेटल हो गए। सो यहाँ नीचे यहाँ हमारा अल्तित है और नीचे गणेश है, जो ये दो गांव थे। गिनिश और अल्तित बिलतरतीब हुंजा की अवलीन आबादियां समझी जाती हैं। गिनिश के मुख्तलिफ मतलब बयान किए जाते हैं। तुर्किश जुबान में गिनिश हमवार जगह को कहा जाता है। गिनिश की मौजूदा आबादी भी हमवार जगह पर है। कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन करना यह है कि ये श्री गणेश से है। सो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम गंदिश कहते हैं। गंदिश वो जगह जहाँ शहरा हो, यानी लोगों का वो गांव जो शहरा पे आबाद हो, उसे हम गंदिश कहते हैं, जिससे गणेश हुआ है। ये हुंजा की सबसे पहली आबादी है। जब शुरू में लोग आके यहाँ आबाद हुए तो उन्होंने इस जगह का नाम गणेश रखा। तो ये ब्रुश जो कबीला या ब्रुशस की ज़बान का जो ताल्लुक़ है, कदीम ज़मानों में कहा जाता है कि ये आस्ट्रिक कबीले से इस ज़बान और कबीले का ताल्लुक़ है। गिनिश के कले में इस्तेमाल करदा लकड़ी की उम्र कार्बन डेटिंग के मुताबिक 1400 साल है। ताहम मुहक्किकीन की राय में कला लगभग 1000 साल पहले तामीर हुआ और इसकी तामीर दिफाई नुक्ता नज़र से दरियाए हुंजा के किनारे महफूज फासले पर की गई। ये कोई कम से कम 1000 साल कदीम जगह है। इसका जो कार्बन डेटिंग टेस्ट है वो 1400 साल बताता है, लेकिन हम एहतियातन इतना कहते हैं कि 1000 साल से कम नहीं, 1000 साल से ज़्यादा है, क्योंकि लकड़ी और चीज़ों के अंदर भी इस्तेमाल होती है। एक चीज़ से उठा के फिर दूसरी चीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो शायद इसमें इस तरह की कोई मुगालता वाली चीज़ ना हो, इसलिए हम एहतियात से कम 1000 साल बताते हैं। कले की तामीर में सनोबर की लकड़ी इस्तेमाल की गई। इस लकड़ी की खासियत ये है कि सदियों तक पानी और मिट्टी के असरात से खराब नहीं होती। मौसमी उतार चढ़ाव भी इस लकड़ी पर कुछ ज्यादा असरअंदाज नहीं होते। लकड़ी पर नक्शकारी कदीम कश्मीरी तर्ज की है, जबकि यहाँ बुद्ध मत, हिंदू मत, चीनी और यूनानी तहजीब के निशानात भी मिलते हैं। यह जूनिपर की लकड़ी को ज़्यादा इस्तेमाल की उन्होंने, अगरचे इसके अंदर और भी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने कोशिश की है कि जूनिपर की लकड़ी मुयस्सर आए, क्योंकि ये जूनिपर की लकड़ी सबसे ज़्यादा मजबूत लकड़ी है। चाहे इसको पानी में रखें या मिट्टी में दबा के रखें, ये लकड़ी सख्त जान है, ये सड़ती नहीं है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ये जूनिपर की इस्तेमाल की है। इस कले के अंदर लकड़ी से बनी हुई छोटी छोटी सी 3 मसाजिद एक दूसरे के करीब तामीर की गई हैं, जो लगभग 350 साल पुरानी हैं। ये मसाजिद यहाँ तलुए इस्लाम के बाद मुकामी लोगों ने तामीर की, ताकि उनका नाम आने वाले ज़मानों में याद रखा जाए। कदीम ज़माने में जब हमारे लोग कश्मीर पहुँचे तो मजदूरी के खातिर, तो खुसूसन जो लकड़ी के काम में दिलचस्पी रखते थे, कश्मीर के अंदर हिंदू बरादरी के लोग भी थे, मुसलमान भी थे। फिर ये गंधारा के कैपिटल यानी टेक्सला के हमसायगी में होने के नाते से काफ़ी सारा गंधारा आर्ट भी वहाँ पहुँच चुका था। तो हमारे लोग बिल्कुल इलिटरेट थे, तो उनकी नज़र जिस चीज़ पर भी पड़ी उन्होंने उसको सीखने की कोशिश की, उसको याद करने की कोशिश की। उसके मानी व मफहूम के साथ इनका कोई सरोकार नहीं था। तो जिस चीज़ पर नज़र पड़ी उन्होंने इसको याद की। जब पलट के यहाँ वापस आ गए और ये मस्जिदें बन रही थी, तो जो कुछ इनके जहन में था तो सब कुछ इन्होंने कर डाला। तो इसके अंदर कुछ हिंदू मत की निशानियाँ भी हैं, कुछ इसके अंदर बुद्ध मत की निशानियाँ भी हैं, इसमें कुछ चाइनीज़ निशानियाँ भी हैं, इसमें कुछ ग्रीक निशानियाँ भी हैं।
हुंजा की दूसरी कदीम आबादी अल्तित कहलाती है, जो गिनिश से लगभग 100 साल बाद निस्बतन बुलंदी पर बसाई गई, जबकि बल्तित की आबादी 700 साल कदीम बताई जाती है। अल्तित के कले में तिब्बती तर्ज तामीर नुमाया है, जो लिटिल तिब्बत यानी शिगर से आने वाले माहिर कारीगरों ने तामीर किया। ये कारीगर शिगर से ब्याकर हुंजा आने वाली शहजादी के साथ भिजवाए गए थे। अल्तित का कला बतौर जहेज उन्हीं कारीगरों ने तामीर किया था। बल्तिस्तान से एक शहजादी की शादी हुंजा के राजा शाह गजनफर के वालिद के साथ हुई थी, जिनका नाम साख्तून था। शहजादी के साथ बल्तिस्तान से जहेज में बहुत सारे कारीगर आए थे, जो कि पत्थर और लकड़ी का काम जानते थे। ये अपने दौर के माहिर कारीगर थे। इन कारीगरों ने अल्तित कला को एक खूबसूरत अंदाज में तामीर किया। जब बल्तित की आबादी बढ़ने लगी तो इक़्तिदार के लिए भी बहुत सारे खेल खेले जाने लगे। इस वक्त जो हुंजा के राजा थे उन्हें कत्ल कर दिया गया। कहते हैं उनका कत्ल साजिश के तहत हुआ था, जिसमें मकामी लोग शामिल थे। बल्ती तर्ज तामीर के ऐन मुताबिक इस कले की तामीर में लकड़ी का खास अंदाज में इस्तेमाल करके इमारत को शदीद जल्जलों से महफूज बनाया गया है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 1000 साल के दौरान आने वाले जल्जलों के बावजूद इस इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। इसका इंटीरियर और एक्सटर्नल विजिट करते हैं तो आप वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जल्जलों से बचाना था। आप ये भी जानते होंगे गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का चौथा खतरनाक जोन माना जाता है, क्योंकि ये यूरेशियन इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स, कराकोरम, हिंदू कुश, हम्माला, पामीर रेंज जो कि शिमशाल से लेकर वाखन कॉरिडोर तक इस जगह को लपेटा हुआ है, ये रेंज है जो सबसे ख़तरनाक है, जिसमें जल्जले आते हैं। सो जल्जलों से इस महल को बचाने के लिए इंटरलॉक्ड बनाया ताकि जल्जलों में ये ना गिरे। और इस फोर्ट का अर्थक्वेक रेजिस्टेंस 8.5 रेक्टर स्केल मिनिमम है आफ्टर रेनोवेशन। तो आप इमेजिन करें 1100 सालों में कितने जल्जले आए होंगे। दरपेश खतरात के पेश नज़र अल्तित फोर्ट दरियाए हुंजा के साथ खासी बुलंदी पर ऐसी जगह तामीर किया गया जहां से दूर दूर तक इलाके की निगरानी की जा सकती थी और हर किस्म की नकलो हरकत पर नजर रखकर मतलूबा हिफाजती इकदामात उठाए जाते थे। हुंजा के लोग तालीम याफ्ता होने के साथ साथ मेहनत कश भी हैं। ख्वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। एक मिसाल ख्वातीन की ये कारपेंटिंग वर्कशॉप है, जहां ख्वातीन लकड़ी से फर्नीचर और दरवाजे खिड़कियां तक बनाती हैं। ये सन 2002 से ये कारपेंट्री का वुड का काम करना शुरू हुआ है और इसमें हम 12 ख़वातीन काम करते हैं और इसमें मुख्तलिफ काम है, जो एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, एक फर्नीचर का काम करते हैं। और इसमें जो वेस्ट वुड होता है इससे हम स्पून्स बनाते हैं और इसमें मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाते हैं। ऑर्डर के मुताबिक हम काम करते हैं। ज़्यादातर फर्नीचर का ऑर्डर आता है जो बाहर से आता है, इस्लामाबाद हुआ, कराची हुआ, वहाँ से। और जो लोकल्स ऑर्डर आती है जो विंडोज़ का आता है, हाउस यानी हाउस बनाने में, छत बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम आती है ज़्यादातर। और हम स्पून्स वैसे ही जो वेस्ट होता है एप्रिकॉट वुड से, वो भी एक मजबूत यानी हार्ड वुड होता है, इससे हम स्पून्स और लीडर्स बनाते हैं। वैसे तो हुंजा पूरी दुनिया में यकसा शोहरत रखता है, लेकिन इसका बुलंद सियाहती मुकाम ईगल नेस्ट अपनी अलग पहचान रखता है। 9000 फुट बुलंद इस मुकाम का कदीम नाम दुइकर है। ईगल नेस्ट जो है सर हाइट पे है इस हुंजा वैली में, 9000 फुट बुलंदी पे। वहाँ पे जो है टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते थे 9/11 से पहला। वहाँ आके सनसेट सनराइज़ का जो है ना वो फोटोग्राफी करते थे। और उसके अलावा आस्ता आस्ता जो ही ये रोड बेहतर हुआ 2009 में,
वहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा यहाँ का जितने भी मुकामी लोग हैं GB का, उनका भी यहाँ पिकनिक के तौर पे आते थे, तो उस लिहाज से जो है काफ़ी मशहूर हुआ। दुईकर से हुंजा और नगर की वादियां नीचे गहराई में दिखती हैं और यहाँ से तकरीबन वो तमाम बर्फपोश पहाड़ देखे जा सकते हैं जो 6 और 7 हजार मीटर से जायद बुलंद हैं। ईगल्स नेस्ट से जो है सर आपको अबो 6000 मीटर का जो पीक्स है अप टू 7788 मीटर तक, ये आपको 11 पीक्स नज़र आएंगे और 360 डिग्री जो है ना व्यू आपको वहाँ से मिलता है। जो टूरिस्ट पॉइंट है हमारा ईगल नेस्ट होटल के साथ, जो उसको अभी आजकल लोगों ने जो है ना ईगल नेस्ट बोलना शुरू किया उस पॉइंट को भी। मौसम साफ हो तो यहाँ से 25,550 फुट बुलंद राका पोशी पर तलुए आफ्ताब और 23,000 फुट से ज्यादा बुलंद स्पांटिक पीक पर सहर अंगेज गरूब आफ्ताब का नजारा किया जा सकता है। एक ऐसा नजारा जो शायद कहीं और नहीं मिलता।